Hello students, we are today starting the female reproductive system in which we are going to study how the development of follicle occurs, oogenesis and the menstrual cycle. All the three headings are having a correlation in between them. Let us first start with oogenesis. Oogenesis similarly shows the three stages like that of spermatogenesis: multiplication phase, growth phase and maturation phase. But in male, it occurs throughout the life. But in female, the multiplication phase only takes place during the embryonic stage up till 5th month of embryonic development, means 25th week of embryonic development. इसका मतलब किसी भी फीमेल चाइल्ड में 25 सप्ताह तक ही जो oogonia होते हैं, जो एग सेल्स को फॉर्म करने वाली जो मदर सेल्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन हो पाता है और फीमेल चाइल्ड के बर्थ के बाद किसी भी प्रकार के एग का फॉर्मेशन नहीं होता। केवल प्यूबर्टी ऑब्टेन होने पर उनका मैच्योरेशन होता है। पर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ओवा मैच्योर हो पाता है, लेकिन 6 से 12 जो एग होते हैं जिन्हें हम प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं, दे स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द प्राइमरी फॉलिकल एंड प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू secondary and secondary get converted into the tertiary follicle, and these tertiary follicle get matures, and after maturation the developing secondary oocyte from the mature follicle, that is also called as Graafian follicle, is released by its rupturing. This process is called as ovulation. तो हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से oogenesis होती है, और oogenesis ऑलरेडी फॉलिकल के अंदर होती है और ये फॉलिकल ओवरी में होते हैं और ओवरी में ये फॉलिकल कॉर्टेक्स में डेवलप होते हैं। और मैंने अभी आपसे कहा था कि जो फॉलिकल्स हैं, इन फॉलिकल्स का जो मैच्योरेशन है वो किसी भी फीमेल चाइल्ड में उसकी प्यूबर्टी ऑब्टेन्ड होने पर होता है। इसका मतलब कि जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद पर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ओवा मैच्योर हो पाता है। इसका मतलब हम साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड एज oogenesis and the oogenesis takes place in ovary. Here is the structure of ovary. और इस ओवरी में दो रीजन है। द आउटरमोस्ट रीजन इज कॉल्ड एज cortex, where the follicles are present in different developmental stages. You can see here different follicles are present in different developmental stages, and the central part of the ovarian tissue is called as medulla. This part is called as medulla, where the lymphatic tissues, blood vessels, reticular connective tissues are present, while the cortex consists of follicles in which the oogenesis taking place inside this follicle. So development of egg is taking place inside this follicle. So remember all these things. We are going to study oogenesis. So oogenesis is taking place inside the follicle, and these are the follicles. We will discuss how the follicles develop. Okay, and these follicles are present in cortex of ovary. The mother cells which produces the egg are called as oogonia, and these oogonia or oogonium comes from the primordial germ cells. So what is primordial germ cells? These germ cells are extragonadal in origin. It means primordial germ cells are not produced in ovary. Female gonads are called as ovary. Here is the embryonic developed stage, which is representing the 3-week-old embryo, which is showing the primordial germ cells in the wall of the yolk sac
close to the attachment of the allantois. Here is the yolk sac, and you can see this is the 3-week developed old embryo, which is showing these cells of this yolk sac, which is mesodermal in origin. Yolk sac comprises of 2 layers. The outer layer is endoderm and the inner layer is mesoderm. The inner layer is mesoderm. Here, these are the mesoderm. Yolk sac के mesodermal cells माइग्रेट होकर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ओवरी में पहुंच जाते हैं और इन्हीं यॉर्क सैक के मेसोडर्मल सेल्स को प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहते हैं, जो माइग्रेट होकर ओवरी में पहुंचते हैं। और ओवरी में यही प्राइमोडियल जर्म सेल्स अंडरवेंट माइटोटिक डिविजन्स एंड दे प्रोड्यूस्ड सेवरल मिलियंस ऑफ approximately 7 millions of oogonia are produced by mitotic division in this primordial germ cells. These primordial germ cells, now this is the another diagram, that is diagram B, migrational, which shows the migrational path of the primordial germ cells along the wall of the hindgut and the dorsal mesentery into the genital ridge. Here is the mesodermal pathway, yolk sac. From here, and this is the genital ridge. The mesodermal cells, you can clearly see, these are the mesodermal cells. These mesodermal cells, which are called as a primordial germ cells, these migrate into the genitalia. This is called as the genital ridge. This forms the genital organ of female. So, the migration of primordial germ cells, you can clearly see. And thus, these reaches into the ovary. Genital ridge means forming ovary in female child. And here it undergoes mitotic division and it now converts into oogonia. और मैंने अभी आपसे कहा इन oogonia की संख्या लगभग दोनों ओवरी में मिलाकर 7 मिलियंस होती है। और ये जो माइटोटिक डिवीजन इन प्राइमोडियल जर्म सेल्स में होती है और इनके रिजल्टेंट के रूप में सेवरल मिलियंस ऑफ oogonia प्रोड्यूस होते हैं, इस प्रोसेस को oogenesis की फर्स्ट स्टेप कंसीडर करते हैं, जिसे आप मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। और किसी भी फीमेल चाइल्ड में ये केवल इंट्रायूट्राइन लाइफ के 25th वीक तक ही होती है। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ oogonia इन अ फीमेल चाइल्ड ओनली ऑकर्स अप टू 25th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। मीन्स oogonia केवल फीमेल चाइल्ड में एम्ब्रियोनिक स्टेज में 5th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक ही हो सकते हैं। किसी भी फीमेल चाइल्ड में बर्थ के बाद oogonia प्रोड्यूस नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। आपने पढ़ा था कि मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाले मदर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थे, दे आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ मेल चाइल्ड एंड इन एडल्ट मेल आल्सो, बट इन फीमेल चाइल्ड and in female the oogonia which produces ova never form after the birth of a female child. And as we have just seen, the oogonia is produced from primordial germ cells. Primordial germ cells, and primordial germ cells are diploid cells, and it is not produced in ovary, means it is extragonadal in origin. तो याद रखना है आपको कि oogonia ओरिजिन में एक्स्ट्रागोनेडल होते हैं। अब हम इस oogonia से ओवा का फॉर्मेशन देखेंगे।
अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ये जो oogonia थे, जब ये ओवरी में पहुंचते हैं, बेटा ये oogonia है, ये एक पूरा एक सेल है, ओके। जैसे ये जो सेल है oogonia, जब ये ग्रो करता है साइज में ओवरी में, तो हम इसी को oocyte कहते हैं। ये लिखा है oocyte। अभी आप इसे oogonia मानिए। जब ये ओवरी में पहुंचता है oogonia, तो इस oogonia के चारों ओर जो जर्मिनल सेल्स होती हैं, उन जर्मिनल सेल्स की एक सिंगल लेयर, ये मोर और लेस फ्लैट स्क्वामस सेल्स या फ्लैट क्यूबॉइडल सेल्स होती है। फ्लैट स्क्वामस और क्यूबॉइडल सेल्स फॉर्म्स अ सिंगल लेयर अराउंड द oogonia, okay. This is now called as primordial follicles. The structure formed is called as a primordial follicles, and these germinal cells which are found around the oogonia, which is arranged in a single layer, is called as follicular cells. These are the follicular cells. And just surrounding to these follicular cells there are stromal cells of ओवेरियन टिश्यूज। ये ओवरी के जो ओवेरियन टिश्यूज है, उन स्ट्रोमा ओवेरियन टिश्यूज के स्ट्रोमा सेल्स है जो फॉलिकुलर सेल्स के बाहर होते हैं। और ये बीच बीच में इन स्ट्रोमा सेल्स के बीच में कुछ फाइब्रस टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं आपको, ये फाइब्रस टिश्यूज, ओके। नाउ द oogonia grows in size, and after the growth of the oogonia it is called as a primary oocyte. प्राइमरी oocyte। और बेटा ये जो प्राइमरी oocyte होता है, इस प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इनिशिएट होती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन दो होती है, जिसमें से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी oocyte में इनिशिएट होती है। लेकिन ये जो प्राइमरी oocyte है, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज स्टेज की डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। मतलब इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रुक जाती है। अब बात यह आती है कि आखिर ये डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्यों यहां पर अरेस्ट हो जाती है। तो आप बताएंगे ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ अ फैक्टर, अ स्पेसिफिक फैक्टर इज सिक्रीटेड फ्रॉम दीज फॉलिकुलर सेल्स। ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, इनसे oocyte मैचुरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज होता है, जो इस प्राइमरी oocyte में होने वाली फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में रोक देता है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में रोक देता है, डिप्लोटिन स्टेज में। अब ये प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में अरेस्ट हो जाता है। तो क्यों अरेस्ट हो जाता है? ड्यू टू oocyte मैचुरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर विच इज सिंथेसाइज्ड बाय दीज फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल किससे डेवलप हुए थे? जर्मिनल सेल से। ये फॉलिकुलर जो सेल्स है बेटा, इनकी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस इस oocyte के साइटोप्लाज्म में होते हैं, और ये इस oocyte को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो फॉलिकुलर सेल्स का रोल ध्यान रखिएगा। एक तो oocyte मैचुरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर सिंथेसाइज कर रहा है, और दूसरा इन oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि एक फीमेल के लाइफ में दोनों ओवरी में मिलाकर 7 मिलियन फॉलिकल्स बनते हैं, और इन फॉलिकल्स को क्या कहा हमने इनिशियली? प्राइमोडियल फॉलिकल्स। तो प्राइमोडियल जो फॉलिकल्स थे, इनमें oogonia था, लेकिन जब oogonia एनलार्ज होता है, इसमें साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस होता है और उसका साइज इंक्रीज होता है, तो आप इसे प्राइमरी oocyte कहते हैं, और इस प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इनिशिएट होती है। तो इस प्राइमोडियल फॉलिकल्स में एक सिंगल फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है विच इज फॉर्म फ्रॉम द जर्मिनल सेल्स, और इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में प्राइमरी oocyte है, डिप्लोटिन स्टेज में। तो ऐसे प्राइमोडियल फॉलिकल्स की संख्या 25th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक दोनों ओवरी में 7 मिलियंस होती है। लेकिन प्यूबर्टी तक जाते जाते, अप टू प्यूबर्टी, दोनों ओवरी में 2-2 लाख
ऐसे प्राइमोडियल फॉलिकल्स बचते हैं, बाकी न्यूट्रिशन की कमी के कारण डेड हो जाते हैं। और इन डीजनरेटेड फॉलिकल्स को एट्रिटिक फॉलिकल कहते हैं और प्रोसेस को, डीजनरेशन के प्रोसेस को एट्रीसिया कहते हैं, फॉलिकुलर एट्रीसिया। तो प्यूबर्टी तक दोनों ओवरी में 4 लाख प्राइमोडियल फॉलिकल शेष रह जाते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड कितने फॉलिकल होते हैं ओवरी में? 4 लाख। और उन फॉलिकल का नाम क्या है? प्राइमोडियल फॉलिकल्स। चलिए एक ब्रीफ में हम पूरी oogenesis की प्रोसेस को पहले समझते हैं, फिर इन फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। oogenesis involves 3 phases. One is multiplication phase, another is growth phase, and the last phase is maturation phase. Let us start with multiplication phase. As I told you, the multiplication phase only takes place during the embryonic stage of a female child up to 25th week of embryonic development, where the primordial germ cells undergoes repeated mitotic division, and these embryonic mother cells are now called as oogonium or oogonia. As the primordial germ cells are diploid, so the formed oogonium are also diploid, means they contains 46 chromosome number, 44 autosomes and 2 X chromosomes, as it is a female child. And these oogonia repeatedly divides and produce additional oogonia. Several additional oogonia are produced. अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में 25th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक ऐसे oogonia की संख्या 7 मिलियन होती है। इसे आप मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। तो फीमेल चाइल्ड में मल्टीप्लिकेशन फेज केवल और केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। इसके बाद प्यूबर्टी तक आते आते, प्यूबर्टी तक, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको एक फॉलिकल का डेवलपमेंट पढ़ाया था। ये सब कहाँ हो रहा है बेटा? फॉलिकल के अंदर। फॉलिकल कहाँ है? ओवरी में। ओवरी में कहाँ है? कॉर्टेक्स में। तो ये जो oogonia है ये फॉलिकल के अंदर है, सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जर्मिनल सेल्स। अब ये जो oogonia है ये ग्रो करता है साइज में, जैसा अभी हमने देखा था, और इसे हमने प्राइमरी oocyte कहा था। तो बेटा कोई चेंज तो इसमें हुआ नहीं, कोई डिवीजन तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो दोनों में सेम होगा। यहाँ पर भी ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte बन गया। और ये जो प्राइमरी oocyte है, अब इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना बेटा? 46। ये केवल साइज में ग्रो करता है, इसमें साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस होता है और इसे हम प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं। तो ये प्राइमरी oocyte किसके अंदर है? प्राइमोडियल फॉलिकल के। अब बेटा एक फीमेल चाइल्ड में प्यूबर्टी ऑब्टेन्ड होती है, और प्यूबर्टी एक फीमेल चाइल्ड में 11 से लेकर 13 वर्ष की उम्र के बीच में कभी भी हो सकती है। मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले 10 से 11 साल के बीच में उसके मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल में डेवलप होना चालू होते हैं, और वेरियस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टन फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यहां पर इसका मतलब इसके बाद ये जो प्राइमरी oocyte हैं दे अंडरगोज 2 meiotic डिविजन्स आफ्टर प्यूबर्टी। इसका मतलब प्राइमोडियल फॉलिकल से, प्राइमोडियल जो फॉलिकल्स होते हैं उसके बाद जो भी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, चाहे वो प्राइमरी फॉलिकल्स हो, सेकेंडरी फॉलिकल्स हो, टर्शियरी फॉलिकल्स हो या मैच्योर फॉलिकल्स, ये सब की सब बेटा प्यूबर्टी में डेवलप होती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनसाइड द ओवरी। हम उसे सेपरेटली स्टडी करने जा रहे हैं, फॉलिकल का डेवलपमेंट। तो याद रखना यहां से ये है बेटा प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर है, और जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है ये फीमेल चाइल्ड में एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप हुई थी, और कब तक बनी रहती हैं? प्यूबर्टी तक। और अब ये जो आगे की प्रोसेस, ये आगे की प्रोसेस जो आप देखने जा रहे हैं, ये सब प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टन हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज FSH एंड LH।
दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इस तरीके से फॉलिकल का फर्दर डेवलपमेंट होता है और फॉलिकल के डेवलपमेंट के साथ साथ उन फॉलिकल के अंदर ये oogenesis प्रोसीड होती है। सो ऑकर्स ईच मंथ इन ओवरी ऑफ फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी। तो आगे की जो प्रोसेस है वो पर मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी तरीके से पर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे प्राइमोडियल जो फॉलिकल्स होते हैं 6 से 12 प्राइमोडियल फॉलिकल्स बेटा स्टार्ट होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। तो लगभग 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होते हैं बेटा पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन उन 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल से केवल एक मैच्योर फॉलिकल डेवलप हो पाता है। वही हमें आगे चैप्टर में देखना है। ठीक है, पहले हम oogenesis को कंप्लीट करते हैं। तो अब हम यहां से चलते हैं oogenesis के आगे स्टेप में। प्यूबर्टी ऑब्टेन होने पर ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें बेटा आपके 2 मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होंगे। फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ये ऑलरेडी प्राइमरी oocyte में इनिशिएट हो गया था एम्ब्रियोनिक स्टेज में, याद है। लेकिन प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में ये अरेस्ट हो चुका है। यहां पर प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में ये प्राइमरी oocyte ऑलरेडी अरेस्टेड था और हमने पढ़ा था किसने अरेस्ट किया था उसको, oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर ने। लेकिन अब जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH सिंथेसाइज होता है और इनके इफेक्ट में, इन दोनों हार्मोन के इफेक्ट में ये जो मियोसिस फर्स्ट है ये बेटा आपके कंप्लीट होती है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहुंचने पर LH और FSH का लेवल फीमेल ब्लड में हाई होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम फॉलिकल के डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में अरेस्ट हो चुकी थी oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर के द्वारा। अब 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में LH सर्ज होता है और FSH सर्ज होता है। मतलब कि 10 फोल्ड्स LH और 3 फोल्ड्स FSH फीमेल के ब्लड में बढ़ जाता है, जिसके कारण ये oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर इनएक्टिव हो जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मैच्योरेशन फैक्टर था या मेटाफेज प्रोमोटिंग जो फैक्टर था वो इनएक्टिव हो गया था, उसका ब्रेकडाउन हो गया था। लेकिन अब FSH और LH की प्रेजेंस में उसका इनएक्टिवेशन एक्टिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि उसका इनएक्टिव फॉर्म का ब्रेकडाउन हो जाएगा और एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर जो है ये इनहेंस होगा या इसकी टर्निंग होगी। और इस प्रकार से जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन है, ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के कंप्लीट होते ही आपके 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यहां पर एक खास बात, these 2 daughter cells which are produced, one is a secondary oocyte and another is a first polar body. You can see it is visible. The secondary oocyte is having the maximum cytoplasmic content in them. So the size of the secondary oocyte is maximum, is large as compared to the first polar body. It is having negligible amount of cytoplasm but equal amount of chromosome number. So each daughter cells is having 23 chromosome number. But cytoplasm is very less in polar body. Polar body में cytoplasm ना के बराबर होता है। इसीलिए ह्यूमन में न्यूट्रिशन की कमी के कारण ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है ये डेड हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ह्यूमन में फर्स्ट पोलर बॉडी में सेकंड मियोटिक डिवीजन नहीं होती। ये देखिए, ये सेकंड मियोटिक डिवीजन। लेकिन जो लोअर मैमल्स होते हैं उनमें फर्स्ट पोलर बॉडी में सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है और इससे 2 पोलर बॉडीज बनती हैं, 2 सेकंड पोलर बॉडीज बनती है। और बेटा सेकंड पोलर बॉडीज का इनका फंक्शन, इन पोलर बॉडीज का लोअर एनिमल्स में, लोअर मैमल्स में फंक्शन होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग ओवम। इन डेवलपिंग ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। लेकिन ह्यूमन में फर्स्ट पोलर बॉडी क्या हो जाती है बेटा, डीजनरेट हो जाती है न्यूट्रिशन की कमी के कारण। और बची हुई जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें बेटा सेकेंड मियोटिक डिवीजन इनिशिएट होता है। लेकिन सेकेंड मियोटिक डिवीजन इनिशिएट होते ही
यहां पर फिर से आपको ध्यान रखना है कि ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन मेटाफेज सेकेंड स्टेज में अरेस्ट हो जाती है, सेकेंड मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाती है। और इसी दौरान अभी मैंने कहा था ये पूरी प्रोसेस LH सर्ज के कारण हो रही थी, और LH और FSH सर्ज के कारण ओवरी की फॉलिकल में कुछ चेंजेस होते हैं जिसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte डेवलप होता है, और उन सेकेंडरी oocyte में रप्चरिंग कॉज होती है, और उसकी रप्चरिंग से ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकेंड स्टेज में फॉलिकल से निकलता है, और फॉलिकल से निकलने के बाद ओवेरियन वॉल की रप्चरिंग से ये फीमेल के पेरिटोनियल अर्थात बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच जाता है, और उस पेरिटोनियल कैविटी से जो फिम्बरी होती हैं, ओवेरियन फिम्बरी, जो कि बेटा इनफंडिबुलम का पार्ट्स हैं, उनसे ओपोसोबल मूवमेंट्स होते हैं और एक पल्स लाइक मूवमेंट जनरेट होते हैं टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब, जिसके कारण ये रिलीज सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब की ओर मूव करती है, और ऑस्टियम के थ्रू इनफंडिबुलम की ओपनिंग, जिसे आप ऑस्टियम कहते हैं, के थ्रू ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकेंड स्टेज में फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंच जाता है। आफ्टर दैट इफ विदिन 24 hours this secondary oocyte receives the sperm, then the fertilization will takes place. Otherwise this secondary oocyte will died off. इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये डेड हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। इसका मतलब सेकेंडरी oocyte की लाइफ स्पैन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कितनी होती है? 24 hours। तो 24 hours तक ये फैलोपियन ट्यूब में जिंदा रह सकता है, और उसी बीच में यदि स्पर्म की एंट्री होती है, यदि इसको स्पर्म मिलता है, तो उस केस में फर्टिलाइजेशन होता है, और ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन थी, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन बेटा कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि स्पर्म के स्टिमुलस से, जब स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte को स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, बेटा स्पर्म जैसे ही अटैच होता है सेकेंडरी oocyte की सरफेस पर, एग का एक्टिवेशन होता है। एग के अंदर सेवरल मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, और उन्हीं मेटाबॉलिक चेंजेस में से एक चेंज होता है इस सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में इंक्रीज होना, और इसकी परमेबिलिटी बढ़ने के कारण एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आयंस जो हैं वो इस एग के साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं, और इस एग के साइटोप्लाज्म में एक साइटोस्टैटिक फैक्टर होता है, साइटोस्टैटिक फैक्टर। और ये जो साइटोस्टैटिक फैक्टर है, ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन फैक्टर्स हैं जो कैल्शियम की एब्सेंस के कारण एक्टिव रहता है, और जब तक ये एक्टिव रहता है तब तक बेटा ये मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर या मैचुरेशन प्रोमोटिंग जो फैक्टर है उसको इनएक्टिव बनाए रखता है, जिसके कारण मियोसिस सेकंड जो है वो मेटाफेज सेकंड स्टेज में ही अरेस्ट हो जाती है। लेकिन अब जब प्लेंटी अमाउंट ऑफ कैल्शियम इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ने के कारण एग के साइटोप्लाज्म में एंटर होते हैं, तो ये कैल्शियम इस साइटोस्टैटिक फैक्टर को इनएक्टिव बना देता है, और साइटोस्टैटिक फैक्टर इनएक्टिव होने के बाद जो मैचुरेशन फैक्टर था या मेटाफेज प्रोमोटिंग जो फैक्टर था उसका ब्रेकडाउन होता है, और इट टर्न्स इनटू द एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, और इस तरीके से एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एंड नाउ द मियोसिस सेकेंड डिवीजन विल कंप्लीट। Due to the completion of second meiotic division, a second polar body in human is produced, along with a one daughter cell that is called as egg. This is the egg. Okay? This egg is produced in, where it is produced? In fallopian tube. फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में? एम्पुला में प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब जो मैच्योर ओवा होता है, it is also called as ooted. So mature ova is produced in the fallopian tube in ampulla, and the second body, polar body, which is produced will also degenerate or consumed as a nutrition. So in human only 2 polar bodies are produced, but in other lower mammals 2 or 3, 2 or total how many? 1, 2 and 3 polar bodies are produced. So in generally when it is asked, जब ये पूछा जाता है during oogenesis
ये ध्यान रखना बेटा, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जब आपसे ये पूछा जाए कि ड्यूरिंग oogenesis हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस, तो आपका आंसर होगा 2 और 3। बट इफ इट इज आस्क्ड ड्यूरिंग oogenesis इन ह्यूमन हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, तो आपका आंसर होगा 2। तो ह्यूमन में कितनी प्रोड्यूस होती हैं? 2। और ह्यूमन में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट जो पोलर बॉडी होती है इसमें माइटोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन नहीं होती, विच इज इक्विवेलेंट टू माइटोटिक डिवीजन। ओके, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है ह्यूमन में डीजनरेट हो जाती है, और इस तरीके से आपके oogenesis कंप्लीट होती है। और जब ये oogenesis कंप्लीट होती है तो बेटा अभी मैंने कहा था सेकेंड मियोटिक डिवीजन तभी होगी जब स्पर्म की एंट्री होगी। इसका मतलब जैसे ही ये ओवा बना, इसके साथ मेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, मेल प्रोन्यूक्लियस का, इसका स्पर्म का, वो फ्यूज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? जायगोट। और इसी दौरान जायगोट के फॉर्मेशन के दौरान इस स्टेप में यहां पर जायगोटिक माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है, जिसे आप क्लीवेज कहते हैं। यहां पर भी एक चीज ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों में, तो ध्यान रखिएगा। मियोसिस सेकंड के दौरान जो एग का सेंट्रियोल था बेटा, ये कंज्यूम हो जाता है इनके स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए, लेकिन जो जायगोटिक डिवीजन होती है, इसकी जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, इनके फॉर्मेशन के लिए यहां पर इस स्टेप में जो स्पिंडल फॉर्मेशन का काम है वो बेटा स्पर्म का सेंट्रियोल करता है। तो हमें ध्यान रखना है, स्पर्म का सेंट्रियोल जायगोटिक माइटोटिक डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एट लास्ट ये देख पाया कि oogenesis के दौरान एक सिंगल oogonia से एक सिंगल ओवा प्रोड्यूस होता है, जबकि आपने मेल में देखा था एक सिंगल प्राइमरी oocyte से 4 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन यहां पर एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ओवम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एक और डिफरेंस आप देख सकते हैं, जो प्राइमरी oocyte हैं, it divides into its cytoplasm is equally distributed in 2 secondary spermatocytes in male. मेल में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस हुए थे प्राइमरी oocyte से, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से, लेकिन यहां पर एक पोलर बॉडी फॉर्म हुई थी और एक सेकेंडरी oocyte। तो जो सेकेंडरी oocyte था इसमें मैक्सिमम साइटोप्लाज्म का कंटेंट होता है, लेकिन जो पोलर बॉडी फॉर्म होती है उसमें ना के बराबर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। ये डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे मेल और फीमेल में होने वाले गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान। ओके, और यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी थी, फीमेल में मल्टीप्लिकेशन फेज केवल कहां होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, ओके। अब इन तीनों फेज में से लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा द लॉन्गेस्ट फेज इज द मैच्योरेशन फेज इन ह्यूमन, while in lower mammals the longest phase is growth phase। यहां पर एक विशेष बात और ध्यान रखिएगा, आपको वैसे भी पता है कि ह्यूमन के एग में यॉक नहीं होता, लेकिन जो लोअर मैमल्स होते हैं उनके एग में यॉक होता है, और यॉक को विटलो कहते हैं। तो यॉक सिंथेसिस की प्रोसेस होती है बेटा oogenesis के ग्रोथ फेज में इन लोअर मैमल्स। तो लोअर मैमल्स में ग्रोथ फेज में 2 स्टेजेस ऑकर होती हैं, एक प्री विटलोजेनेसिस कहलाती है और दूसरी विटलोजेनेसिस कहलाती है। प्री विटलोजेनेसिस का मतलब होता है प्रिपरेटरी फेज फॉर यॉक सिंथेसिस, और यॉक सिंथेसिस की प्रोसेस को क्या कहते हैं? विटलोजेनेसिस। तो विटलोजेनेसिस और प्री विटलोजेनेसिस ऑकर्स इन ग्रोथ फेज इन लोअर मैमल्स, नॉट इन ह्यूमंस। ह्यूमन में यॉक का सिंथेसिस कहां होता है? एग में तो नहीं होता, तो इसका मतलब यॉक नेसेसरी तो होता है क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ह्यूमन में यॉक लीवर में प्रोड्यूस होता है, और लीवर से प्रोड्यूस होकर ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये ओवरी में पहुंचता है oocyte के साइटोप्लाज्म में। इस तरीके से हम इस oogenesis को यहां पर कंप्लीट करते हैं, और इसके आगे
जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है वो हम कंटिन्यूअस रखेंगे, जिसमें oogenesis ये जो पूरी प्रोसेस है ऑलरेडी इन्वॉल्व होगी। चलिए, थैंक यू।